वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स की। समझते हैं कि निफ्टी कहां पर है और क्या कर सकता है कल के वॉलेटाइल वेंसडे में। ऑब्वियसली कल का डे वॉलेटाइल होगा या नहीं वो हमें अब तक नहीं पता, बट वन कैन स्पेक्यूलेट एंड लेट अस डू जस्ट दैट। तो यहाँ पे डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं निफ्टी हैज नॉट मैनेज टू क्लोज अबव 17600। दैट बीइंग सेड, आज का हाई था अराउंड 625, विच आई फील इज अ हेल्दी लेवल ओवरऑल, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर आज का ओपन और लो था अराउंड 350 के आसपास। 345 was the low, 360 was the open. So roughly 350 का ओपन था, 625 का हाई था, which is what around 280 points or so. Not bad, right? Not bad. मेरा maths is also not the best, but I hope that was not inaccurate. But anyway, बात करते हैं हम लोग निफ्टी की ओवरऑल। I'll just lock the drawings here और बात करते हैं हम लोग इंट्राडे चार्ट पे। What we can see here इसकी कल हम लोग ने जो लेवल की बात की थी, which happens to be somewhere around here, वो लेवल एक्चुअली रेजिस्टेंस बना था दो बार टुडे, first here, second here, but that level was actually broken in the last few minutes of the market, which is a very important thing क्योंकि typically last few market minutes में we do not really see bullishness unless the sentiment is very bullish, क्योंकि typically what we have seen is such movements जहाँ पे एटलीस्ट 3 बजे के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। यहाँ पर भी हम लोग ने एक हद तक वही देखा था, द बायस वाज नॉट दैट बुलिश अनलेस व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। इसकी अगर समझो गैप अप होता है जैसे यहाँ पे हुआ था, एंड देन वी सी एन अप मूवमेंट, something like this also that we saw, it sort of faded towards the EOD. There are not that many instances that I can recall कि इतना strong EOD close करता है, which I think deserves some, at least some credit for the bulls, I would say. But that being said, हम लोग देखते हैं ये हाई था कल का, ये लो था कल का, this is today's high and this is today's low, which means कि it is still a lower high and a lower low, which is not very bullish. Overall हम लोग देख सकते हैं कि prices are still trying to climb up, trying to regain those levels, but I feel it might just be an uphill battle unless हम लोग देखते हैं मे बी कल या एक्सपायरी के आसपास हम लोग 800 के ऊपर चले जाए, which in case might be a good feat, but otherwise I feel it might be an uphill climb. For example, यहाँ पे 720 पे एक resistance है, we can see another resistance coming in right around 800 itself. After that, we have seen this level acting as a resistance around 870, 880. So वो zones काफी important रहेंगे। अगर supports की बात करें, then the first support comes right around there at 600 or so. उसके बाद हम लोग ने एक ये वाला लेवल अच्छा होल्ड होते देखा है, and then we can see there are a few minor supports, some were around here around 440, and then one of the levels that we have spoken about extensively, and that is going to be around 380 or so. ये वाला जो जोन है प्रैक्टिकली दिस इज द वन दैट वी हैव स्पोकन अबाउट। सो आई थिंक कल की मूवमेंट लाइकली यहाँ पे होने वाली है। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट व्हाट द ग्लोबल मार्केट्स आर एक्चुअली टेलिंग अस। सो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा। राइट नाउ SGX इज एट 630, which means कि it is indicating some sort of positivity. 630 pegs it right somewhere around here. मतलब अगर ऊपर जाता है likely to face some headwinds between 700 and 720. अगर वहां से नीचे जाता है, I would say the very first level of support might just be around 620, 625, which was around today's high. और उसके बाद I feel the next level after that happens to be around 580 to 600. After that around 520 as we discussed. So वो levels रहेंगे मेरे for Nifty। अगर बात करते हैं हम लोग daily chart की, then daily chart पे we can see it is not looking that bullish, but still let's see. I would say at this stage I'm still relatively neutral, जितना न्यूट्रल हो सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इवन दो ये एक अच्छा सपोर्ट है, इवन दो व्हाट वी कैन सी इज RSI 60 बाउंस, आई स्टिल फील that uncertainty still remains and the markets will always be uncertain. But जब तक मेरे मन में वो uncertainty है तब तक I'm not going to just blindly put all my funds in. In fact, मैं अभी भी I'm still holding on to some funds to see अच्छा अगर और नीचे आता है then maybe that is a good time. अगर ऊपर चले जाता है then maybe at that time once I feel comfortable I will look at buying more shares. But as of now मैंने मेरा जो प्रीवियस थॉट प्रोसेस रहा है दैट ओके, इफ स्टॉक इज डूइंग गुड आई बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, दैट इज व्हाट आई एम स्टिल डूइंग।
सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, बिकॉज़ अगर मैं बोलता हूँ कि मैं पार्शियल बुक कर रहा हूँ, तो आई फील आई शुड गिव अ फॉलो अप टू दैट एज़ वेल। यहाँ पर हम देख रहे हैं 38,080 के आसपास का जो हम लोग ने कल सपोर्ट देखा था, उसके आसपास से ही ऊपर गया है। इनफैक्ट आज का लो था 37950, 38,000 फुल रीटेस्ट हो गया है, हम देख सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट प्राइसेस हैव एक्चुअली स्काई रॉकेटेड फ्रॉम दैट लेवल। अगर हम लोग देखते हैं 37,950 का लो with the high being 38,869, that puts it at almost what 900 points. That is a massive range for price to have today, especially since अगर हम लोग लो से लेके क्लोज का डिस्टेंस देखते हैं, it really isn't that much. That makes it around what 700 800 points का distance, which means कि इंट्राडे बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन सी हियर। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट निफ्टी से काफी ज्यादा मूव किया है बैंक निफ्टी ने। एंड निफ्टी में हम लोग यहीं से रेजिस्टेंस हिट कर रहे थे, बट दैट लेवल वाज लॉन्ग ब्रोकन बाय बैंक निफ्टी। और हम लोग देख सकते हैं इनफैक्ट येस्टरडे के हाई को भी तोड़ दिया है, गैप भी फिल कर लिया है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर आके रुका है अभी। So I think as of now, Bank Nifty is quite strong, fairly strong. PSU banks की वजह से है ये primarily। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, I will just show you. I'll hide this for now. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं that PSU banks have actually led the pack today. Private banks भी अच्छे ही थे, they outperformed Nifty, but it was really the PSU banks that are actually the top sector overall, followed by auto sector. ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, विक्स इज स्टिल फ्लैट टू पॉजिटिव, नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन, क्योंकि वन वुड एक्सपेक्ट कि अच्छा अगर मार्केट फाइनली ऊपर जाता है 2 दिन की गिरावट के बाद, मे बी देन विक्स फॉल्स, बट नॉट रियली। मे बी दिस इज बिकॉज गैप डाउन ओपन था, हम लोग ने देखा था। गेनर्स एंड लूजर्स, दिस इज द लिस्ट, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। क्वाइट फ्रैंकली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऑल ऑफ दिस इज रेडी टू interpret information, nothing really to share, to be very honest with you, सब public domain में available है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की, आई फील दिस माइट बी दी ओवरऑल बायस। अगर हम लोग वही हिसाब से चलते जाए कि दीज पास्ट कपल ऑफ डेज व्हेन बैंक निफ्टी, अगर इफ इट फॉल्स अ लिटिल मोर, इफ इट गोज अप अ लिटिल मोर, अगर उस हिसाब से देखें, देन इफ SGX इट इज अराउंड 630, लेट्स से वी एक्सपेक्टेड टू ओपन एज सच। जनरली होता नहीं है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि वैसा होता है, then maybe bank nifty we expected to open around 39,000। अगर वैसा होता है, then 38,900 का जो सपोर्ट है, that might be an important support, and let's say hypothetically speaking यहाँ पे वो बॉटम बना देता है, that would mean कि आज का बॉटम और कल टुमारो के बॉटम में 1000 पॉइंट्स का फर्क है। आई नो दिस इज जस्ट स्पेक्यूलेशन, प्योर अंधा स्पेक्यूलेशन आप इसे बोल सकते हो, but I am just trying to say what is very likely to happen or what can happen in fact. So उस हिसाब से आई वुड से दैट टुमारो माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में हम काफी बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं उस हिसाब से। लेट्स से कि वैसा नहीं होता, लेट्स से कि ओवरनाइट सेंटिमेंट्स फिजल डाउन होते हैं, हम लोग देखते हैं फ्लैट जैसा ओपन या माइनर नेगेटिव ओपन, देन इन दैट केस आई वुड से 38,700 38,800 का जो लेवल है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक द रेस्ट ऑफ द tone might be decided। let's say अगर ये level टूटता है, which happens to be yesterday's high, then I think we might be headed closer to that 38,400 level, which is around a 300 to 400 point downside। So देखते हैं, overall this is going to be my view। Again, just Nifty Bank Nifty for now। अगर हमें टॉप स्टॉक्स और सब देखना है, मे बी वी कैन कवर दोज इन अ वीकली मार्केट एनालिसिस। एंड स्पीकिंग ऑफ, अगर आपको लाइव स्ट्रीम अटेंड करना है मेरा, देन देयर विल बी another live stream happening। This one will be on Thursday at 3 p.m। 3 से 3:30 का लाइव करेंगे हम लोग, एंड इन दैट आई विल do a live market analysis of course, and we can do a quick Q&A as well, just like last week। This will be available on creator.club, and it will be on YouTube as well। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो, make sure you are subscribed to the YouTube channel, because if you aren't, trust me, you are missing out on a lot। and yeah, that's about it for this one। आई होप यू फाउंड गुड वैल्यू इन दिस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मिलते हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम में। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।